No, we will not be having normality in exam. Okay, so don't worry about it. So this is atomic structure, lecture 8. Okay, so till now we have seen what is let's say absorption spectrum. What is absorption of energy? What electron will do when it is going to absorb the photon, so it will go to higher state, and what it is going to do when it is going to come to the, let's say, lower energy state. So there is another part that is called number of photons emitted during emission. ठीक है, maximum number of photons है. Maximum number of photons emitted during emission. So how many photons are going to emit, we are going to understand here. So let's say for an example, if we are having n equals to 3 and we are having it is coming to n equals to 1. So this is going to be n equals to 3, n equals to 2. Okay. Generally we draw this n in according to energy difference. Okay. So n 1 से लेके 2 तक का energy difference बहुत ज़्यादा है. So it is like this. Right, you would have seen I have drawn like this previously also. So this is based on energy difference. यहाँ से यहाँ तक का difference ज़्यादा है 1.2, यहाँ से यहाँ तक का 1.89. So just for that similarity we draw so that we can understand here energy difference is more. Now anyway, the one possibility is in one atom what can happen, the photon can come directly to, you know, one. Okay, and another possibility is this is going to come to, let's say, by in parts. So this can come, right? So that is going to be, let's say, it is going to become here and then it is going to be from here to here. Okay, so total photon if you are going to see, then this photon is corresponding to what is that energy difference, 12.09, and this photon is corresponding to 1.89 electron volt. Let's say for hydrogen atom I am talking about, let's say. This photon is going to be 10.2 electron volt. Okay, so total number of photons are going to be 3. This is going to be 3. So this formula comes, this is nothing but delta n into delta n plus 1 by 2. So what is delta n? Delta n is nothing but 3 minus 1. किस में आ रहा है? 3 से लेके वो 1 में आ रहा है. So this is 2. ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे डेल्टा n plus 1 that is going to be 2. कैसे आया डेल्टा n? So the electron is jumping. What is delta n? n3 minus n1. So this is 2, है ना, right? You can say n3 2 n1. That is 3 minus 1. That's 2. So 2 into 2 plus 1, that is 3 divided by 2. So this is going to be 3. Now we are going to check another example where we are going to take n equals to 4.
and this is going to come into n equals to 1. So what is the possibility? One possibility is like this. So the one possibility is it is going to come right here. Okay. Another possibility I am drawing in this diagram only, right? So let's say another possibility, it can happen that it is going to come to first like this and then this, right? Another possibility is, let's say it is going to come first, it is going to like this and this and then this. Okay. Another possibility is, there is another possibility. Another possibility is this is going to be, let's say it is going to come from here to here and then this. ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है. अब हम देखेंगे यहाँ पे सिमिलर एनर्जी के फोटॉन्स को काउंट नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज दिस एंड दिस इज सिमिलर, ओके, over here, so we will not count this one, right? And this is similar, so we are not going to count any of this one. Let's say this one we will not count. So how many photons? 1 2 3 4 5 and 6. So how many different energy photons? ठीक है, when we are saying, let's say, है ना, maximum number of photons, that means these are different energy of photon, है ना. तो maximum number of photons having different energy. This is I am writing because you should not understand that we are counting total. We are not counting this one because we cannot identify. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उनकी एनर्जी अलग अलग है? एनर्जी अलग अलग है तो वेवलेंथ अलग अलग होगी. वेवलेंथ अलग अलग होगी तो हम जहाँ पे मेजर कर रहे हैं, राइट, वहां पे हम आइडिया लगा लेंगे, राइट. This is what is happening. So here what is going to be? So hence number of photons is going to be let's say total number of photons is going to be 6, which is nothing but, अगर आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूले से लगाते तो you can say that is n2 minus n1, है ना. ये तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया, और from formula what will happen? Delta n into delta n plus 1 by 2. So this is delta n value is 4 minus 1, that is 3, into, है ना, let's say 3 plus 1, that is 4, divided by 2, so 6. सुन लेते हैं. Again, these are all are, let's say, possibilities are given here, है ना. इनमें से कुछ तो सेम एनर्जी के हैं, है ना, इनके बीच की एनर्जी फिक्स है ना, n equals to 4 n equals to 3 के बीच की एनर्जी फिक्स है, ऐसे 3 से लेके 2 की एनर्जी फिक्स है, राइट. So how many different energy photons we can check? So we are going to count over here. So ये जो formula है, that is based on कि कितने यहाँ पे, है ना, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स मिलेंगे. अब इसमें एक आता है नोट. So what is note? Note is, अगर मान लो if isolated gaseous atom is present, isolated gaseous atom is present means this is only one atom. That's very important concept है ये. So listen very carefully. If isolated gaseous atom is present and that is only one atom, ठीक है. अब वन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही बार बस आ सकता है नीचे. ये जो पॉसिबिलिटी है ये 4 अलग अलग एटम में होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाई थी, राइट. ये एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही बार नीचे आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर चला गया, फिर नीचे आ रहा है, राइट, नहीं ना. तो एक एटम में केवल एक ही बार ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है.
अगर 2 एटम होंगे तो एक में ऐसा हो सकता है, एक में ऐसा हो सकता है। 100 एटम होंगे तो 50 में ऐसा हो सकता है, 50 में ऐसा हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो मैंने पॉसिबिलिटी बनाई है यहाँ पे, राइट, अलग अलग लाइन से, ये अलग अलग एटम में पॉसिबल हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली नीचे आ जाए, कोई ऐसा हो कि n इक्वल्स टू 4 से 3 में आए फिर नीचे आए, कोई बिल्कुल टूट टूट के आए, राइट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में केवल लिखा हो इफ आइसोलेटेड गैसेस एटम इज प्रेजेंट दैट इज ओनली वन एटम, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इज गोइंग टू बी डेल्टा एन। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछूंगा 4 से लेके 1 में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कहाँ मिलेंगे, इस वाले में, ग्रीन वाले लाइन में, 1 2 3, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एन। एंड मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, 1। मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन इज गोइंग टू बी 1। डायरेक्टली यहाँ से सीधे जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? यस ध्वनि बोलो। हेलो सर। सर मुझे 2 डाउट है, पूछो। सर फर्स्ट डाउट ना, ये एग्जांपल में आपने बोला था ना कि मतलब सेम टाइप एनर्जी हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे वैसा, तो वो मेरे को नहीं समझा सर। मतलब आपने सेकंड कैसे करोगे? मान लो यहाँ पे 100 एटम है, हाँ, हाउ वुड यू लेट्स से नो दैट कितने फोटोन इधर से आए कितने इधर से आए? तुम्हें तो बस ये एनर्जी पता चल जाएगी ना। यू विल टेक ए फोटोग्राफिक प्लेट, उसमें स्पेक्ट्रम डालोगे, ब्लू जैसे डालते हो ना अलग अलग लाइन की, है ना, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, तो वैसे ही आप जो है इन फोटोन की लाइन डालोगे, आप यहाँ पे जहां जहां ये फोटोन आएगा तो आप हाईलाइट कर लोगे, उससे वेवलेंथ निकाल लोगे। ओके। दूसरा डाउट क्या है? हाँ सर, दूसरा डाउट ये है कि वो मैक्सिमम फोटोन डेल्टा एन होता है, वो पार्ट नहीं समझा। अरे यही तो बताया मैंने, ये क्या बताया, 4 लाइन है, ये क्या है? सॉरी, हेलो। हाँ सर। हाँ मैंने अभी ये बताया ना, यहाँ पे ये 4 पॉसिबिलिटी है, ये क्या बताया, ये 4 पॉसिबिलिटी? सर वो फोटॉन्स के मतलब कैसे आ सकते एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे, मतलब ऑर्बिट पे। एक एटम में एक ही बार आएगा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ तो बस उसमें देख लो कौन से में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, ज्यादा हाँ जितनी बार टूट सकता है उतनी बार टूट टूट के आएगा, बस। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड मतलब अकेला गैसियस एटम, है ना हिंदी में। थैंक यू सर। ठीक है, हमने कैंसिल नहीं किया है, हमने बोला ये हम दोबारा 2 बार काउंट कर रहे हैं, ये भी थर्ड ही फोटोन है ना। दिस इज ऑल्सो थर्ड नंबर फोटोन। फोटोन की एनर्जी देखो ना आप, 4 से 3 में आ रहा है, दिस इज थर्ड। वी आर नॉट काउंटिंग इट, दैट्स इट, ये 5 5 है। वी आर नॉट काउंटिंग, दैट्स व्हाई आई हैव क्रॉस्ड इट। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। हाँ बेटा पूछ लो जल्दी जल्दी। हेलो सर। हाँ सर बोर मॉडल तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए ही है ना, तो फिर वो ऊपर वाला केस भी तो एक अकेला एटम के लिए ही हुआ ना? अकेले एटम में एक मरे, वही बात मैंने बोला कि जैसे मान लो मुंबई से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बस रूट है टूट टूट के, ट्रेन है डायरेक्ट, या फिर ट्रेन भी मान लो चेंज कर करके है, 2 टाइप से, और एक एयरलाइन से। तो एक आदमी यहाँ पे जो है वो एक ही बार तो दिल्ली जाएगा, लेकिन अलग अलग आदमी होंगे, वो अलग अलग तरह से जा सकते हैं। हमसे बोला जाए कि मैक्सिमम कितनी तरह से जा सकते हैं, तो हम सबकी पॉसिबिलिटी लेंगे ना। सर आदमी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यस, ओके। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है,
हाँ. एक में वो डायरेक्टली चला गया, दूसरे में वो टूट के गया. Okay. तीसरे में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि थोड़ा टूटा. तो सारी पॉसिबिलिटी होंगी ना, सारी पॉसिबिलिटी होगी तो आप देखोगे कितने फोटोन निकले यहाँ से. अच्छा, करेक्ट ठीक है. है ना. हाँ, ओके. हाँ. ओके, थैंक यू. लो अच्छा लिख लो भाई, थोड़ा यार जल्दी जल्दी लिखो. चलो एक एग्जांपल करते हैं, बहुत सारी बातें जो समझाई हैं उससे रिलेटेड. चलो एग्जाम्पल है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम. हाइड्रोजन लाइक जैसे atom or ion corresponding to second excited state is given by 13.6 electron volt. Then like find Z, ठीक है. B, find ionization energy, और ये ऐसा लिख सकते हैं find then find A, what is Z, B, what is ionization energy, C, energy of photon required to cause transition from second state to third excited state, and D,
wavelength of photons emitted when electron falls from first excited state to ground state. ठीक है, तो ये जो भी हमने पहले पढ़ा है उस सब से रिलेटेड है. ठीक है, नाउ maximum number of photons emitted when electron jump from fourth excited state to ground state. What is the maximum wavelength of photon emitted during case E transition? है ना, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने में जो भी फोटॉन्स निकले उनमें व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है? मैक्सिमम एनर्जी, राइट? दैट इज मैक्सिमम एनर्जी. आई एम गिविंग यू हिंट हियर आल्सो. Okay, so a lot of questions over here because this is going to give a clear exam clarity कि हमने क्या क्या कर रखा है अभी तक. ठीक है, very good Vedant, you have given correct answers. Vedant Thakre. First two are correct, third is wrong. Scroll down. यार ये पहले लिख लो भाई, याद आ गया ना, ये स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन में ही चला जाएगा टाइम. याद हो गया सबका? चले आगे, है ना, यहाँ तक नोट डाउन हो गया. वेरी गुड. नाउ चेक दिस. हाँ भाई, करेक्ट सौरभ, करेक्ट राज. 3 आंसर आए हैं अभी तक. हाँ देखा, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा कोई ना कोई का स्क्रॉल अप, और स्क्रॉल अप नहीं होगा. मैंने बोला था कि ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन में ही चला जाएगा टाइम. मैंने कहा पहले लिख लो यहाँ तक. हाँ करेक्ट. नाउ वेदांत, योर आंसर इज करेक्ट. reduce size. तो ध्वनि रॉन्ग.
रिवीजन नहीं किया धोनी ने। आगे सारे लोग देखते हैं 151 आगे। चलो 2 बार अटेंडेंस मत देना, ठीक है? पिछली बार सब लोगों ने अटेंडेंस 2 बार दे दी, बहुत सारे बच्चों ने, एक ही बार दो। Now everyone has done the board attendance, ठीक है? मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। Okay, that's it. So now ठीक है भाई, अब चलें करें क्वेश्चन या फिर अभी भी कर रहे हो आप लोग? पहले 3 पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, क्योंकि जिनसे नहीं आ रहे हैं उनसे नहीं आ रहे हैं, है ना? जिनसे आ रहे हैं उनको थोड़ा चमक रहा है। तो मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको पूरा भरपूर मौका मिलेगा करने का। चलो मैं पहले फर्स्ट बताता हूँ। हाँ, डिस्कस कर दीजिए, निहारिका ने कह दिया है। ओके चलो बेटा, आपकी बात मान लेते हैं। Now this is very interesting part. If you know that what is the meaning of second excited state and first excited state, fourth excited state, then it will not be a problem, है ना? आपको definition भी पता होनी चाहिए। So this is solution. In first question they are saying कि binding energy of second excited state. So second excited state का मतलब क्या हुआ? That is, second excited state means, let's say we are going to write
n इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 में है। Now n इक्वल्स टू 3 की एनर्जी क्या होगी? So I have told you that you can 13.6 से आप डिवाइड कर सकते हो। So that is going to be minus 13.6 z square by n square, that is 9, and that is going to be okay 1 point. If you are going to let's say solve, so this is going to be minus 1.51 z square. Now where it is going to binding state is, that means it is going to infinity, so that is going to 0. So what is the difference here? So difference here is 1.51 z square. Now hence your first part 1.51 z square is equals to 13.6. So z square equals to क्या हो जाएगा? 13.6 divided by 1.51, or you can say 9. So z is equals to 3, है ना? अभी ये जो इंफॉर्मेशन आई थी, बट 13.6 डिवाइड बाय 9 ये था, तो 13.6 डिवाइड बाय 1.51 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सो z इक्वल्स टू 3। पहले में किसी को कोई डाउट? ठीक है, नाउ second part. Second is saying ionization energy. So what is the ionization energy? Ionization energy is 13.6 z square. तो बस 13.6 into 9. So this value will come 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ये भी हो गया। अब चलते हैं सी पे। सी थोड़ा सा है ना ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है वहां पे, राइट। इन सी दे आर सेइंग भाई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज, है ना, ट्रांसमिशन फ्रॉम सेकेंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 4। अब मैं बोल रहा हूँ मतलब सेकंड और फोर्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ? n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 4। दिस इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है कि कितना एनर्जी का फोटोन ये एब्सॉर्ब करे, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आ रही है बात? तो कितना एनर्जी का फोटोन चाहिए आपको? h nu। सो ओवर हियर we need, what is the energy here? So this is energy is over here 3.4 z square. Obviously आप z की वैल्यू बाद में डाल दोगे। And what is the energy here? So this is, if you can recall, this is minus 0.85 z square इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। तो क्या हो जाएगा? इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस ये क्या हो जाएगा? सो और यू कैन रिकॉल, मैंने आपको ये बोला भी था, ये एनर्जी याद कर लोगे तो आसान रहेगा। So that is energy difference is if you are going to subtract then it is 2.55 है ना। ये 2.4 plus 0.15 है ना। 1 से ये कितना ज्यादा है? 2.4 ज्यादा है। 1 से कितना कम है? 0.15 कम है। So this is 2.55 z square। बस अब आप क्या करो, इसमें डाल दो। Hence क्या हो जाएगा? एनर्जी should be, energy is E4 minus E2 and that is 2.55 z square and that is 2.55 into 9। तो इसको आप कर लो 945 4 945 and 4 9, that is 4 and that is 9 into 2 18 and 4 22। so this is 222.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सी। चलते हैं डी में। डी में क्या दे रखा है? इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ, एक मिनट क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, ठीक है, अमन के भी आंसर आ गए, वेरी गुड अमन। जिनके भी आंसर आते हैं वो भेजते जाओ मुझे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से करते जाओ। नाउ वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो इसमें मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी आपको, है ना, वो यू हैव टू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला। ठीक है, मान लो अभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 2 में है, और वो ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1 में जा रहा है।
So now what it is going to do, it is going to emit electron. What is the emission of electron will happen according to energy? So this is minus 13.6 Z square. This is minus 3.4 Z square. So you can calculate. So this is nothing but 10.2 Z square. Remember, I have told you. एनर्जी कितनी हो गई? फर्स्ट मेथड ये है कि हमें एनर्जी पता है. So energy is nothing but, ठीक है. So energy is nothing but we can say that is 10.2 Z square. So this is 10.2 into 9. So this is 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये हमें मिल गया. अब हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं E इक्वल्स टू 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके लिए. So lambda is equals to 12,400 डिवाइड बाय 91.8. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं यहाँ पे. सो ये 0.92 है एक तरह से, और 92 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 30, 24 और 32. सो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी समवेयर 135 एंगस्ट्रॉम. सॉल्व इट. ठीक है. सेकेंड मेथड, second method is we can write all the time, we can write. ठीक है, okay, you have checked correctly, Rohan, very good. So this is going to be near to approximately 135 angstrom. ठीक है. second method क्या है कि हम एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें. so what is energy? delta E equals to, right, so over here this is, let's say we can say energy over here, that is going from E initial minus E final, or you can say, or E excited state minus E ground state, anything, or you can say E2 minus E1. यहाँ E2 मतलब क्या है, फाइनल स्टेट. anyway, sorry, this is E final minus E. ठीक है. So this is going to be excited minus ground, right, over here E2 minus E1, like that. You can write anything. So if I am going to write, let's say in this form, है ना, यहाँ पे E2 क्या है, this is final, and this E1 is initial, it's not second state. okay, E2 is final and this is initial. Whatever you want to write, you can write in terms of. So what is delta H, delta E? Delta E is Hc by lambda. And what is E final? If you are going to see, then it is nothing but 13.6, you know, n z square by n square. So z square by n square, that is n2 square minus, sorry, this was already minus, and this is minus plus. So this is 13.6 z square by n1 square. So you can say Hc by lambda is nothing but 13.6 z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ठीक है. Now this value, that is in electron volt. So this value we are getting in electron volt. If we have to convert, सबको बात समझ में आ रही है? ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला बना रहा हूँ. तो पहले यहाँ तक लिख लो. अच्छा,
हो गया? चलो अब देखते हैं आगे। आप बहुत ध्यान से सुनो ये बातें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो वन थिंग इज, इफ यू डायरेक्टली नो दैट एनर्जी डिफरेंस, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। द ओनली डिफिकल्टी इज कि यहाँ पे हो सकता है आपको कैलकुलेशन आए थोड़ी सी, राइट? दिस इज द ओनली चैलेंज इज ओवर हियर। नाउ सेकंड मेथड इज वी कैन राइट द एनर्जी डिफरेंस लाइक दिस। अब ये जो है ना, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो दैट इज we are going to convert in joule. So this is an electron volt, 13.6 electron volt. We are convert, because this value we are going to write in joule, so we are converting 13.6 electron volt into joule. That is 13.6 into 1.6 into 10 to the minus 90. So what will happen? Hc by lambda is equals to 13, because now we are going to cut or something, right? So हमें ये करना पड़ेगा। Now another thing we can write is 1 by lambda. Hc की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, that is 19.89, right? Remember 19.89 into 10 to the minus 26. H value is 6.63 and 10 to the minus 34. C value is 3 into 10 to the 8. तो इससे अगर आप करेंगे तो ये 10 to the minus 26 आ जाएगा। 34 and 8 plus 8, so minus 34 plus 8 is minus 26. ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख लूंगा वैसे। So now the formula is 1 by lambda is equals to, so 1 by lambda is equals to 13.6 into 1.6 into 10 to the minus 19 divided by, right, 19.89 into 10 to the minus 26 z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So this is a constant, ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इज गोइंग टू बी 10 to the power 7। अगर मैं ऊपर देखूंगा, एंड 13.6 into 1.6 कितना हो जाएगा? सो 13.6 into 1.6, 16 into 6 is 96, 16 into 3 is 48 and 99, this is 757, and 16 5 21, so this is 21.76, and this is 19.89. So this value is approximately 1.1। अगर इसको देखेंगे, ये 19.9 में अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा, है ना? अप्रोक्सीमेटली 2 के हिसाब से थोड़ा सा कम है। दिस इज 1.1 and I will write the exact value also. So okay, just for calculation purpose, so that you can understand what I am going to say next. What is going to be this 1 by lambda is called r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And where r is this is, we are going to put in bracket, so where r is Rydberg constant, where r is Rydberg constant। अभी सॉल्व करना बंद कर दो, है ना? ना लेसन ओनली, फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या बता दिया, ऊपर करो नीचे करो, ये सब चलता रहेगा, है ना? डोंट सॉल्व राइट नाउ, जस्ट ओनली लिसन। where r is Rydberg constant and r equals to 1.097 into 10 to the power 7, this value जो मैंने अभी आपको बताया, right, this will come 1.1, close to 1.1, and exactly this is going to be 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse,
ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 बाई लैम्डा है, ये वैल्यू इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो यूनिट्स है एन जेड, है ना। तो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा की जो यूनिट होगी वो ही आर की यूनिट होगी, राइट। 1 बाई लैम्डा की यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स, दिस इज नथिंग बट न्यू बार, ये भी लिख सकते हो आप, न्यू बार। वेव नंबर, so that is 1.097 into 10 to power 7, or for approximately you can write for calculation purpose 1.1 into 10 to power, है ना, 7 meter inverse. Now we are generally we are not going to, नहीं, I will not scroll up, wait, अभी नहीं, थोड़ा देर रुको। जनरली ये तो हो गया फॉर्मूला आर के हिसाब से, सो दिस इज ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, फन क्या है इसमें, अगर मान लो मुझे राइट आर की वैल्यू याद नहीं रखनी है, यहाँ पे मुझे याद रखनी है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, मुझे याद रखनी है 1 बाई आर की वैल्यू, एंड 1 बाई आर इज इक्वल टू, अगर मैं 1 बाई आर की वैल्यू लिखूंगा then it is going to be 1 upon 1.097 into 10 to power 7, that is going to be in meter, right. If I am going to convert in angstrom, so this is going to be, that is 10,000, like 10 to power 10 divided by 1. This is in meter, right, this is according in meter, and this is 1.10 to power 10 अगर मैं कर दूंगा मीटर को कन्वर्ट कर दूंगा एंगस्ट्रॉम में, so this will come 1.097 into 10 to power 7 in angstrom, this is in angstrom. So this value is come as, आप याद रख लो इसको, 912, approximately 912 angstrom, ठीक है, ये वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम आ रही है, ये याद रख लेना। नाउ अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 4 में जा रहा है या 4 से 2 में जा रहा है, जो भी है यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग ऑलवेज गोइंग टू बी लोअर, ये हमेशा लो वाला है, एंड दिस इज ऑलवेज हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। So you will always write like this, this is lower, n1 is always lower energy, चाहे जंप करे, चाहे emit करे इलेक्ट्रॉन, या फिर ऊपर जंप करे, absorption, emission, whatever it is, so according to that, तो hence क्या हो जाएगा, lambda 1 by lambda is equals to r, z square की वैल्यू 9 है, एंड कहाँ से कहाँ जा रहा था, 4 से, मतलब सॉरी 2, हाँ 2 से 4 में जा रहा था, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 1 by lambda equals to 9r, and this is going to be 1 by 4 minus 1 by 16. So you can quickly write this is going to be 9r, right, and that it is going to, you are going to take LCM, तो ये 16, फिर यहाँ पे 4 से LCM लेंगे, so this is going to be 4 minus 1, so this is 9r into 3 divided by 16, so this is 1 by lambda, 1 by lambda is 27r by 16, और lambda equals to क्या हो जाएगा, 16 by 27 into 1 upon r, and that is 16 by 27 into 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट जो भी है, हमेशा 1 and 2 थोड़ी ना है, कहाँ से कहाँ आ रहे हो आप आ रहे हो 2 से 4 में, तो मैंने यहाँ बोला भी था कि ये 2 और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, फाइनल, इनिशियल, और यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से ओवर हियर हायर, फाइनल का मतलब क्या है, ये हायर है, एंड दिस इज लोअर। अब जब माइनस डाला था तो ये माइनस का माइनस रहा और ये माइनस का प्लस हो गया, तो इसलिए n1 माइनस n2 हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका लोअर माइनस हायर हमेशा, अच्छा डी क्वेश्चन में हम, ओके क्वेश्चन में हम 1 से 2 जा रहे हैं, ओके ओके ओके, सॉरी यस, इस वाले क्वेश्चन में हम 1 से 2 जा रहे हैं, मैंने ये वाला निकाल दिया, राइट, करेक्ट। तो एनीवे अगर हमें वो निकालना है कि 1 से 2 जा रहे हैं,
So all this calculation will change now. So over here, what will happen? This is going to be 1 by 1 minus 1 by 4. So this is 1 minus 1 by 4. You know that is मतलब 2 का square है ये. So 1 minus 1. So this is going to be over here. अगर हम देखेंगे 1 में से 1 by 4 होगा तो 3 by 4 बचेगा. So 9r into 3 by 4. So that is going to be 27r by 4. So 1 by lambda is equals to this. So 1 by lambda is this. So lambda is equals to 4 by 27 r. Sorry, 1 by r. And 1 by r is 912. So 4 by 27 into 912. So if you are going to cut by 27, तो ये value आपको आ जाएगी, which is 135 angstrom. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया. बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, ये याद रखना. अब इसमें जिसको लिखना है लिख लो जल्दी से. ऊपर नीचे कहाँ सही है, ये फिट है. हाँ 2 पेजेस कर देता हूँ. इसमें ऐसे ही आ रहा है ना, इवन वाले ही आ रहा है. एक मिनट, 3 and 4 नहीं आ रहा है. ठीक है, ऊपर का लिख लिया तो नीचे का लिख लो आप. नीचे का तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, डायरेक्टली की जा सकती है. Now next is, let's say E. हेलो सर. हाँ सर हमने वहाँ पे 1 by r को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट क्यों किया है? ताकि कैलकुलेशन आसान रहे बस. सर लेकिन क्वेश्चन में तो r का वैल्यू डालना पड़ेगा ना, 1 by r का नहीं. हाँ तो हमें 1 by lambda मिलेगा ना. पहले r से मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो वो लंबा पड़ जाएगा ना. तो याद रख लो 1 by r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होगी. ठीक है सर. अच्छा हाँ, इसमें एक और बात बता देता हूँ. ठीक है, द गुड थिंग अबाउट दिस फॉर्मूला इज कि आप इसमें लैम्डा तो निकाल ही सकते हो, राइट, आसानी से. अब मैं सिंगल पे आ रहा हूँ. इसमें आप लैम्डा तो निकाल ही सकते हो इस वाले क्वेश्चन पार्ट में. व्हाट यू कैन आल्सो डू इज नोट, we can also calculate
frequency this by this formula. So over here, what way is written? 1 by lambda, that is nothing but rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ठीक है, ये लिखा हुआ है. अब मैं इसमें पूरे से मल्टीप्लाई कर दूं c से. ये क्या जाएगा? c by lambda, which is nothing but nu, and that is going to be rc z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. बस हो गया. इस फॉर्मूले से मुझे एनर्जी डिफरेंस मिल गया E2 माइनस E1, 1 बाय लैम्डा मिल गया, और 1 बाय लैम्डा मतलब न्यू बार मिल गया. एंड दिस इज आल्सो आई एम एबल टू गेट दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज R into C z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. बस. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? R की वैल्यू रखूंगा, उसमें C से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अब आगे. Now ले लिखो यार. This whole value is in meter, okay? Don't think this is in meter, okay? So 1 meter I have converted into, let's say this is 1 meter, this is I have converted into 10^10 angstrom. चलो आगे चलें. कोई लिख तो नहीं रहा है? सबका हो गया. अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन इसके आगे यूजेस हैं. कई बार आंसर जो है ना वो आर के टर्म्स में दे रखा होता है. मतलब यहाँ पे अगर हम आर के टर्म्स में आंसर देते तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 4/27 आर. तो कई बार ऑप्शंस में आपको ऐसा दिखेगा तो वो पहला वाला मेथड काम नहीं करेगा. पहला वाला मेथड काम करने का मतलब पहला वाला मेथड के लिए आसान है कि हम पहली वाली सॉरी जनरली कि आसान क्या है, पहली वाली कैलकुलेशन करें, है ना, वो थोड़ा सा कम है. और जब आर में दे रखा हो तो ये वाला सेकंड मेथड लगा. तो लेट्स सी नेक्स्ट चलते हैं. So next question is that if electron is going from fourth excited state to first excited state, ऐसा कुछ. What is over here? So this is the part is that maximum number of photon when electron jump from fourth excited state to ground state. और F में क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वेवलेंथ. इनमें से जो भी फोटोन निकलेंगे उसमें पूछा गया है मिनिमम वेवलेंथ. तो ये भी देख लेते हैं. तो आप समझते हैं ये थोड़ा इमिशन वाला पार्ट. Now when it is electron in fourth excited state, है ना, fourth excited state मतलब means N2. Let's say now I am writing N2, which is nothing but 5, right? Higher excited state, higher को N2, right? So that is N2 is 5 and N1 is 1 ground state. So that is going from 5 to 1. So if I am going to write over here, this is and it is going into n equals to 1, let's say here. तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन सा होगा? ये वाला. और सबसे कम एनर्जी का फोटोन कौन सा होगा? एनर्जी बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इन्हीं के बीच में सबसे कम एनर्जी है. इसके अलावा अगर हम कोई भी देखेंगे तो वो
हाँ बेटा यही तो समझाया है अनुष्का। इमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन इमिट अ लॉट ऑफ फोटोन, है ना, एक से ज्यादा फोटोन कर सकता है, तो उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी ना, एनर्जी अलग अलग होगी। ऑब्वियसली एक एटम में तो यही वाला होगा, दूसरे वाले एटम में ये वाला फोटोन जा रहा होगा, है ना, तो हम अभी सारी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, उनमें ये वाला देख रहे हैं। तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी, है ना, ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट लैम्डा, and this is going to be minimum, highest energy means minimum wavelength, so this is minimum wavelength, minimum lambda, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि एफ और आगे वाले जो क्वेश्चन है ये एफ के बाद जी में, उनमें क्या करना है ना, 5 से 4 और 5 से 1 देखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है किसी को दिक्कत इस बात में? Now let's move on to now part ki how many different, so maximum photon is going to be, that is nothing but n2 minus n1, which is 5 minus 1 4, so that is going to be delta n into delta n plus 1 by 2, so that is 4 into 5 by 2, so this is 10, so 10 photon आएंगे maximum photon. Now we are having maximum wavelength, तो maximum wavelength आ जाएगी. So now you can apply both formula, you can apply the first one में energy difference आपको देखना है, so you have to remember what is the energy of fifth, let's say period, fifth orbit, so energy of that is going to be approximately 0.54, कितना था 0.54 electron volt, and this was 0.54 z square, and that is 13.6 z square electron volt. ये वैल्यू कितनी है 0.85 electron volt z square electron volt, so this difference is going to be approximately 0.31, and this is going to be this difference is going to be 13.06 electron volt, this is 0.31 electron volt, 0.31 z square, यहाँ पे भी z square आएगा, and this is 0.31 z square. So you can solve with this help, with the help of these two values. So maximum wavelength, that is going to be lambda equals to 12,400 divided by 0.31 into 9. So ये value आप देख लो ये कितना आ जाएगा, 9 से 9 और 27, so 2.78, let's say, sorry 2.79 or 2.8. So this is 12,400 divided by 2.8. Now आपको इसको solve करना है, so this value would have come around 28, 1400, 5000 से थोड़ा कम रहेगा, 4 कितना हो जाएगा 112, 12 फिर कितना बचा 12 बचा, so again 4500 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी, ठीक है। So if you are solving this, this is going to be approximately close to 4500, and if you are going to solve accurately, then this 44 something 44, and so just solve it, and I think this is going to be like this. Right, 4428, okay, 4430, ठीक है, ऐसा ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा, so minimum wavelength lambda is equals to 12,400 divided by, the difference over here is 13.6, sorry 13.06 z square into 9, तो ये कितना हो जाएगा 13 into 9 कितना होगा 117, and 0.9, तो ये हो जाएगा 117 divided 0.54. You are going to solve this, this is going to be close to 100 के आसपास आएगा. So this is so it is coming approximately 140
5.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसी को सेकंड मेथड से अगर हमने किया होता है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज 1 by r 1 by lambda 9r, व्हाट इज हियर, ये आ रहा है किससे, 5 से 4 में, सो दिस इज 1 by 16 minus 1 by 25, सॉरी उल्टा, मैक्सिमम वेवलेंथ ले रहे हैं ना, so minimum energy, correct. So this would have been like this. So 1 by lambda would have been 9r. ये कितना होगा डिफरेंस, ये इसका एलसीएम 400, ऊपर आएगा कितना 25 minus 9, so this is 25 minus 16, so this is going to become 9 divided by 400. So this is over here lambda equals to, from second method I am writing 400 by 81 into 1 by r. So this value is approximately 5 times. तो r की वैल्यू 912 है, 912 इंटू 5 टाइम्स देखोगे तो ये 4560 के आसपास आ गया। सो मैंने बोला था ये थोड़ा सा ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट है, ये यहाँ से थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो दिस वुड हैव बीन कमिंग, अगर हम यहाँ पे 12,420 लेते तो शायद आंसर है ना और अप्रोक्सीमेट आता। सो दिस इज गोइंग टू बी 400 डिवाइड बाई 81 into let's say 912, so this is coming approximately 4,500। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू एकदम एक्यूरेट नहीं आएगी। एक्यूरेट के लिए फिर आपको पूरा यहाँ पे ये एक्यूरेट लिखना होगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है, ये एक्यूरेट मतलब काफी एक्यूरेट आंसर दे रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ कितनी आती 1 upon lambda is equals to 9r, ये आया 5 से 1, so 1 by 1 minus 1 by 25, so that is 1 by lambda is 9r into 1 by 24 by 5 24 by 25, so lambda would have been 25 divided by 24 into 9, so this is 216 into 1 by r and ये आता आपका lambda equals to 25 by 216 into 912। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 4 से ज्यादा आ रहा है ना, देखो 200 का 4 टाइम्स 800, 16 का 4 टाइम्स 64, तो कितना बचा 48 अभी भी बचा। तो दिस वुड हैव बीन 4 पॉइंट, अगर इसको देखेंगे so this is coming, इसकी वैल्यू आ रही है 105.5 ये आ रही है, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा है 105.5 और यहाँ मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया था 8 की जगह, सो इफ यू विल राइट 79 हियर तो वो आएगा। एनीवे, सो दिस इज योर आंसर। ये पूरा समझ में आया, स्पेक्ट्रम पे है ये पूरा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लोगों का आया सही है, जिनको डाउट है पूछ लो, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है यार, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। एनर्जी का डिफरेंस वाला फॉर्मूला आपको याद हो तो बस लगा दो, नहीं तो 12,400 वाला लगा दो ये बस। हाँ, लेकिन लेंदी लिखा होगा है ना, ये सारे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, ये पढ़ने में आपको जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको लगे पेपर में अरे यार ये तो बहुत लेंदी है, तो मैं पढ़ूंगा तो टाइम चला जाएगा। अच्छा, आप लोग एग्जाम जा रहे हो, थोड़े से कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ, है ना, एग्जाम में जा रहे हो इसलिए। तो पहले ये जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा, टिप्स बिल्कुल लास्ट में, एक एग्जांपल और। Now sometime, this is one more example, sometime क्या होगा, z की वैल्यू आपकी कोई
इंटीजर नहीं आ रही होगी, मतलब जैसी वैल्यू दे रखी होंगी उसमें ऐसा होगा कि आप अगर z की वैल्यू निकालोगे तो वो इंटीजर नहीं बनेगी। तो ऐसे केसेस में क्या है, हम z की वैल्यू नहीं निकालते, हम बस फॉर्मूले में जहां जहां z है वहां पे वो जो भी वैल्यू आ रही है उसको लिख देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। हो गया? तो नेक्स्ट, यस, मान लो एक और क्वेश्चन है, ये अनदर क्वेश्चन। if first excitation potential, एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो भी एक्साइटेशन एनर्जी है उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो वो वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है if first excitation potential of hydrogen light, है ना, सैंपल, जब भी ऐसा कभी दे रखा हो इसका मतलब है बोर मॉडल लगेगा, राइट, is 15 वोल्ट, फाइंड A ionization energy, B second excitation potential। ना मैं इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब जैसे ये 15 वोल्ट दे रखा है, तो अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लिखूंगा दैट इज गोइंग टू बी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, दैट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में जा रहे हैं, सो दिस 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये जो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है, यहां से यहां गए, राइट। तो अगर मैं इसको 13.6 के टर्म्स में देखूंगा तो मुझे z की वैल्यू मिलेगी नहीं, है ना, देख लो वरना, नहीं तो ये कितना है 10.2 z स्क्वायर आपको पड़ता है और ये वैल्यू आ रही है 15 इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन सी दिस इज 1.5 और z का अगर आप रूट लोगे तो नहीं आएगा। मतलब ऐसे वाले केसेस में क्या करना है, जब भी ऐसा दे रखा हो, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो ई नॉट वैल्यू निकाली है यहाँ पे, है ना, जो 13.6 लिखा था हमने, हम उसको 13.6 ना लिख के ई नॉट लिखेंगे, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज एक्चुअली, राइट, कहाँ से कहाँ के लिए है, सो E2 टू माइनस E1 है, राइट, एंड दिस इज माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस माइनस प्लस, ई नॉट जेड स्क्वायर, यहाँ पे ई नॉट लिख लो उसको, है ना, यहाँ पे क्या लिखो, ई नॉट, 13.6 ना लिख के क्या लिखो, ई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 ई नॉट जेड स्क्वायर, एंड विच इज नथिंग बट 15 इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, ये सबको बात समझ में आ रही है, एक्साइटेशन पोटेंशियल गिवन था, फिर से बता दे रहा हूँ, दैट इज 15 वोल्ट, अगर आप 10.2 लिखते इसको, सॉरी, एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट था तो एक्साइटेशन एनर्जी आ जाती 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, 2 से 1, है ना, राइट, सॉरी 1 से 2, राइट, एक्साइट कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये E2 माइनस E1, ये माइनस में वैल्यू लिखी है तो माइनस, ये यहाँ पे माइनस रहेगा और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 है, राइट, सो दिस विल कम 3/4, बस हमने यहाँ पे 13.6 नहीं लिखा, 13.6 लिखते तो ये आपको 10.2 जेड स्क्वायर आता, तो वो जेड की वैल्यू नहीं निकल पाती, तो हमने कुछ ऐसा लिख लिया। अब इससे क्या मिला, इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई, हेंस ये क्या हो गया एक तरह से, हेंस ई नॉट जेड स्क्वायर वुड हैव बीन, है ना, ई नॉट जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, सो दैट वुड हैव बीन 4 into 15 डिवाइड बाई 3। हमें तो बस ये निकालना है ना, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है,
5, तो क्या आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन। तो पहला आंसर आया 20 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा पूछा गया है व्हाट इज सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 3 में जा रहा है, दैट इज सेकंड एक्साइटेशन। So what is let's say delta E over here, अगर मैं देखूंगा what is delta E over here, तो ये तो है E नॉट Z स्क्वायर माइनस E नॉट Z स्क्वायर, दिस इज है ना, ये क्या है आपका माइनस E नॉट Z स्क्वायर बाई 9 क्योंकि 3 है। So what is the difference? Difference is going to be, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8 बाई 9 E नॉट इंटू Z स्क्वायर। ठीक है, 1 में 1 बाई 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 बाई 9। एंड ई नॉट जेड स्क्वायर आपको पता है दैट इज 20, सो ये क्या हो जाएगा 8 बाई 9 इंटू 20, सो 160 बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 17 इंटू 9 153। ठीक है, तो ये 17 पॉइंट फिर 7 रह गया, तो अप्रोक्सीमेटली 8 7 5 भी आ जाए 7 5 आ जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? किसी को दिक्कत? ई नॉट हमने 13.6 को ई नॉट लिख लिया है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन लाइक सैंपल है ना, हाइड्रोजन सैंपल नहीं है। हाइड्रोजन लाइक सैंपल में ई नॉट की वैल्यू कुछ हो सकती है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, राइट, बोर मॉडल वाला। हमने वहां पे उसको 13.6 की जगह ई नॉट डाल के सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें ई नॉट से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है कि अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, ये 15 है तो ये कितना होगा, बस ये इससे मतलब है। इन्होंने एक्साइटेशन पोटेंशियल बोला गया है, तो हेंस एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हेंस सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 17.75 वोल्ट। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वाला ये बात सही है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, बट वहां पे Q1 Q2 बाई R लिखते हैं ना, तो हमने ये वैल्यू 13.6 Q1 और Q2 की वैल्यू को रख के रखी थी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम हो सकता है Q1 कम लिया हो, कुछ K की वैल्यू कम ली हो, किसी और मीडियम में लिखा हो, राइट, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, राइट। ऐसे वाले क्वेश्चन में जब Z की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आती है तब बोल रहा हूँ मैं, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। या फिर अगर Z की वैल्यू फ्रैक्शन में आ भी रही है, जैसे आपने 10.2 लिखा, तो फिर आप उसमें दिमाग मत लगाओ, आप घबराओ नहीं, है ना। ये आपने लिखा 1.5 सॉरी 15, तो आपका Z स्क्वायर आया 15 बाई 10.2। फिर क्या करोगे, आपको क्या करना है 13.6 Z स्क्वायर लिखना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 13.6 Z स्क्वायर। आप इसमें घबराओ नहीं कि ये सर ये इंटीजर नहीं आ रहा है, बस मेरा मेन कंसर्न ये है 13.Z स्क्वायर में यही वाली वैल्यू डाल दो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 15 बाई 10.2, ये अपने आप कट जाएगा, है ना, ये इसको कट कर देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से 3 एंड इट इज गोइंग टू बी 4, तो फिर वहां से भी आ जाएगा 20। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने 10.2 Z स्क्वायर भी लिख के लिखा, तो आप इस बात में मत घबराओ कि ये 15 बाई 10.2 फ्रैक्शन आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है उसको फिर पुट कर दो 13.6 Z स्क्वायर में, या फिर E नॉट Z स्क्वायर में। 13.6 की जगह मैंने E नॉट लिखा हुआ है, तो कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो, whatever you feel like, you just get the answer according to information given in the question. This is what is my main motto, कि आपको उसमें घबराना नहीं है। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग इज, तो जो अभी हमने पढ़ा है
उसमें बस हम कुछ नाम दे देंगे कि ये कौन सी वाली लाइन होगा, क्या होगा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लिख लो। So this spectrum means nothing but कि how the wavelength are going to scatter or break, है ना, उनको हम पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो प्रिज्म होता है ना, वो उससे अगर व्हाइट लाइट पास करो तो वो 7 कलर में टूट जाता है। उसी तरह से एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो spectroscopy is measure instrument which is going to measure like what is going to be wavelength of light, spectroscopy, and that graph or something spectroscope is like जहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन सी वेवलेंथ आई, राइट। एक तरह से आप बोल सकते हो उसे स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ बोल सकते हैं उसको, या फोटोग्राफ टाइप बोल सकते हैं कि ये मतलब जो हम फोटो पिक्चर ले रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पे वेवलेंथ है। तो थोड़ा सा समझते हैं इंट्रोडक्शन। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप अपने दिमाग में प्रिज्म समझ लो ना, जो कि लाइट को ब्रेक कर देगा, राइट। एक तरह से प्रिज्म है यहाँ पे, राइट। इसका मेन पार्ट एक तरह से क्या है यहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन पार्ट प्रिज्म है, ओके, ओवर हियर। नाउ दिस इज गोइंग टू, लेट्स से where we are going to see, so we are going to see different types of spectrum on spectrograph, or you can say photograph, photographic plate on, ठीक है। now comes what is types of spectrum. So that is, let's say, spectrum, you can say that is based on nature. Based on nature, we are going to say two types of, that is going to be continuous and discontinuous or discrete. हाँ, ये अभी आएगा निहारिका, वेरी गुड, लेकिन अभी हम यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, वो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, अभी तो हम, है ना, बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, बेस्ड ऑन नेचर। सो दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, मतलब जो व्हाइट लाइट का आता है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो कि हम व्हाइट लाइट में देख रहे हैं कि बिल्कुल कंटिन्यूअस आ रहा है, कोई वहां पे ऐसा नहीं है कि कुछ वेवलेंथ बीच में गायब हो, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, लाइट, है ना। व्हाइट लाइट का मतलब क्या है, लाइट।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हमने पढ़ा है। और ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हमने देखा था कि जब प्लैंक्स थ्योरी हम बता रहे थे तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस है, या फोटो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता रहे थे तो वहां पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या होगा कि भाई हम कैसा सोर्स ले रहे हैं जिसके हिसाब से ये है ना बन रहा है। देयर आर गोइंग टू बी टू टाइप्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम पे, मेनली इमिशन स्पेक्ट्रम पे। थोड़ा मैं हिंट दूंगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमिशन स्पेक्ट्रम मेनली। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे, इसको समझते हैं कहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, कहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो ये बात हम समझते हैं, इतना लिख लो जल्दी से। मुझे ये एब्जॉर्प्शन इमिशन बताना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा हिंट देना है एग्जाम के लिए। तो सुनते हैं, समझ लेते हैं पहले। अब ये क्या है, ये तो आप लिखते रहना, ठीक है, सुनते भी जाओ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मैं बस समझा रहा हूँ यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सोर्स लेते हैं और उससे लाइट पास कराते हैं। नोन वेवलेंथ की लाइट्स हैं, जैसे एक रेंज है उसकी लाइट्स पास करा रहे हैं। ये तो एक सोर्स ले लिया आपने, राइट, लेट्स से लाइट सोर्स यहाँ पे ले लिया मैंने, ये बल्ब, ठीक है, इट इज गोइंग टू रेडिएट सर्टेन लाइट्स, ये पता है कितनी। या फिर इसमें फिल्टर लगा दिया तो हमें कुछ लाइट, हमने फिल्टर लगा दिया तो फिर वो लाइट नहीं जाएगी, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जाएगी, राइट। सो दिस कुड बी फिल्टर, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि हम एक रेंज ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे छोड़ रहे हैं, नोन, पर हमें नोन पता है। जैसे मान लो हमें पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से हम 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? से यस नो? हाँ, हम एक नोन वेवलेंथ की लाइट को, है ना, एक नोन वेवलेंथ के रेंज की लाइट को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब क्या है, ये इसको कहाँ पे छोड़ रहे हैं, एक गैसेस सैंपल है, वो यहाँ पे गैसेस सैंपल है जिसके एटम्स, गैसेस, मॉलिक्यूल, एटम्स कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये लाइट इस पे गिरी, क्या होगा, जितनी करस्पॉन्डिंग, जितनी भी आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी की, कांस्टेंट एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो इमिशन के लिए, सॉरी एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे हमने बताया था 10.2, 12.09, 12.75, यही वाले फोटोन बस एब्जॉर्ब होंगे, बाकी सारे फोटोन निकल जाएंगे। ये पूरी लाइट ऐसे पास ऑन हो जाएगी सैंपल से। समझ में आया? फिर से सुन लो, एक नॉन वेवलेंथ की, नॉन रेंज की वेवलेंथ के हमने फोटोन इस पे छोड़े एक गैसेस सैंपल पे, वहां पे क्या होगा, एक सर्टेन एनर्जी के फोटोन्स तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे, ठीक है। फिर भी ये लाइट हमने ऐसे जैसे एरो बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट टूटी हुई है, लाइट मिक्स है, ये पूरी मिक्स्ड लाइट है। अब ये पूरी मिक्स्ड लाइट किस पे गिरी, हमारी प्रिज्म पे गिरी, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी ना। ये पूरी लाइट अगर गिरेगी यहाँ पे, राइट, प्रिज्म पे, तो ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक करके हम कहाँ पे ले लेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे,
अब हुआ ये कि अगर मान लो मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट भेजी है, तो मुझे सारी लाइट यहाँ मिल गई। कौन सी लाइट एब्सेंट थी? केवल एक पर्टिकुलर फोटोन जो आपका एब्जॉर्ब हुआ है एनर्जी का, बस वो एब्सेंट था। इसका मतलब क्या है? एक कंटिन्यूअस बैंड होगा और बीच में एक लाइन गायब होगी, फिर एक कंटिन्यूअस बैंड होगा। समझ में आ रहा है? फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तो एप्लीकेशन भी बताऊंगा मैं कहाँ होता है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक मैंने लाइट सोर्स लिया, उसमें मैंने क्या कर लिया, एक फिल्टर लगा दिया। ठीक है, और मैंने एक फिक्स कर दी, मान लो ये मेरी एक पर्टिकुलर ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया है मैंने, 4000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ की लाइट में छोड़ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मान लो ऐसा भी समझ सकते हो, क्योंकि कलर की भी क्या होती है, रेंज होती है ना, मैंने बताया था 3800 से 7600, इस पूरे लाइन में 7 कलर डिवाइडेड है। सो यू कैन अंडरस्टैंड पर कलर देयर इज गोइंग टू बी सम रेंज, है ना। तो मैंने ये लाइट छोड़ी, ये रेंज वाली लाइट है, यहाँ पे गैसेस सैंपल है, क्या होगा, ये सारी लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, बट एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन ही एब्जॉर्ब होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी के फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक ही वेवलेंथ होगी, मतलब 12.09 के करस्पॉन्डिंग एक ही वेवलेंथ होगी। यू कैन कैलकुलेट, है ना, 12400 डिवाइड बाय 12.09, तो इससे आंसर आपका आ जाएगा। एनीवे, आपको क्या होगा कि यहाँ से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ, अगर मान लो हो सकता है 12.09 के हिसाब से साथ साथ 12.75 भी एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ इस जो भी यहाँ पे हम रेंज की फोटोन छोड़ रहे हैं उसमें से 2-4 फोटोन क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे फोटोन पास ऑन हो जाएंगे। पास ऑन होके ये किस पे गिरेंगे, प्रिज्म पे गिरेंगे, ये प्रिज्म पे गिरेंगे तो स्कैटर हो जाएंगे, राइट। यहाँ स्कैटर किस पे देख रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे देख रहे हैं। तो जब ये स्कैटर हुए तो हमने मेजर कर लिया, देखो भाई ये लगातार लाइन मिल रही है हमें करस्पॉन्डिंग लगातार, राइट, लेकिन एक दो लाइन मिसिंग है बीच में, फिर एकदम लाइन मिल रही है। जैसे मुझे 4000 से 5000 देखना हो तो मुझे 4000 मिली, 4001 मिली, 4002 मिली, 4003 मिली, 4 मिली, 5 मिली, 6 मिली, ऐसे करके लगातार लाइन है। लेकिन मान लो 4100 एब्सेंट थी तो 4099 मिली, 4101 मिली, लेकिन 99 नहीं मिली, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक बीच में ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो एक तरह से आपको बैंड मिला, फिर डिसकंटिन्यूस हो गया। फिर मान लो आपने ऐसे ही 4800 तक गए, 4800 मान लो लेट्स से एब्सेंट है, ठीक है, तो फिर बीच में ये आपको पूरा लगातार लाइन मिली, ये एब्सेंट हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइंस एब्सेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, लाइंस यहाँ पे क्या होंगी, एब्सेंट। समझ में आया? हाँ ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो हमने पहले ही नोन वेवलेंथ के फोटॉन्स छोड़े थे, यहाँ से नोन वेवलेंथ के फोटॉन्स छोड़े थे। स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस का कोई कलर है क्या, कलर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ आएगा ना, हो सकता है नहीं भी आए, इंफ्रारेड में हो, विजिबल में हो, तो कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली आपको क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यू आर गोइंग टू गेट some lines are not going to be let's say present there, ठीक है। तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो थोड़ा सा हटा देते हैं सारी कहानी में। In simple words, if I have to say, then I am going to say that I am going to incident a energy or photons or light of known wavelengths, you know, light of known wavelengths, the range is falling on gaseous sample, some photons of corresponding energy energies are absorbed by gas atoms or molecule जो भी है,
remaining photons remain unaffected, hence on photographic plate we are going to see absent lines corresponding to absorbed photons. ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं वो समझ लेते हैं कि ये जो बात हम समझ रहे हैं कि नहीं आइसोलेटेड नहीं है बेटा, आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेट का मतलब होता है एक हमने ले लिया हो, एक एटम निकाल लिया हो, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। गैस का सैंपल आइसोलेट थोड़ी ना कर सकते हैं, एक एटम को निकाल लिया हो उसमें से। एनीवे, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ बोर मॉडल ये है कि जो हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। बोर ने एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोला, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम ले रहे हैं तो उनमें ये एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा कि पहले में केवल 2 हैं, दूसरे में फिर 8 हैं, तीसरे में है ना ऐसा 8, 18 ऐसे करके बनाया गया पीरियोडिक टेबल में। तो ये सब एनर्जी लेवल्स हैं। आगे हम देखेंगे इनको SPDF में भी समझेंगे और आगे और समझेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट इट इज गोइंग टू अलाइन। लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होना चालू होता है। एनीवे, द होल सोल एम ऑफ दिस पार्ट व्हिच आई एम सेइंग कि ये टेक्निक यूज होती है आज भी, है ना। ये किसमें यूज होती है? एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेट्स से एलिमेंट्स, एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो एक मैंने माइनिंग इंडस्ट्री है, उसने बोला कि भाई ये बताओ कि ये जो मैं सैंड सैंपल या रॉक सैंपल भेज रहा हूँ इसमें आयरन है या नहीं है ना। दिस इज द टास्क। तो हमें देखना है कि आयरन इसमें मतलब प्रॉपर मात्रा में है कि हम यहाँ पे और अगर इससे यूज करना चालू करें तो हम आयरन निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो दिस इज अवर कंसर्न कि आयरन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उस रॉक सैंपल को छोटे छोटे बारीक पाउडर में डाल दिया, है ना। बारीक पाउडर करके फिर उसको डाला आपने एसिड में ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। वो डिसॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्यूशन बन गया। उस एसिड सॉल्यूशन को क्या किया आपने, हीट करके वेपर में ले गए। अब ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेपर्स बन रही है। सही है ये बात? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने इतना हीट कर लिया कि ये वेपर्स में आ जाए सॉल्यूशन। नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं उसमें नॉन वेवलेंथ की क्या कहते हैं लाइट डालूंगा। सिंस मुझे आयरन ही निकालना है तो आयरन का एक ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आयरन की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है ना लाइंस दे रखी होंगी। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी। अब जो यहाँ से फोटोन पास ऑन होके फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ेगा, सॉफ्टवेयर एनालाइज करेगा कि भैया कौन कौन सी लाइन मिल गई, कितनी लाइन मिल गई। कौन कौन सी लाइन मिल गई ये बताएगा कि जैसे ऐसे आयरन के लिए होगा, ऐसे ही मेरे लिए ऑक्सीजन के लिए होगा, कैल्शियम के लिए होगा, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ऐसे ही, है ना। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ये डेटा स्टोर होगा। तो जब ये हम देखेंगे कौन कौन सी एब्सेंट लाइन है, जो एब्सेंट लाइन है उनको वो एनालाइज करेगा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन कौन सी एब्सेंट लाइन है, और अकॉर्डिंग टू डेटा वो ये एनालाइज करेगा कि कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, आयरन प्रेजेंट है या नहीं, कितना प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने तरह के फोटोन आ रहे हैं। तो वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलग और होती है, लेकिन ये पता चल जाएगा इसमें आयरन है या नहीं। तो आपको ये बात समझ में आई, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कोई भी जैसे सैंपल अगर हम लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे उसको मतलब
पूरा पाउडर करके फिर सॉल्यूशन बना के फिर वेपर्स में ले जाएंगे। उससे नोन एनर्जी की वेवलेंथ हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमारा क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से कि वो फिक्स करेगा कि भाई यहाँ से 100 एंगस्ट्रॉम से है ना, मान लो 200 एंगस्ट्रॉम वाला आप एनर्जी डालो, तो वही फिल्टर लगा के है ना, एनर्जी सोर्स फिक्स है, वही फिल्टर लगा के इधर केवल यही एनर्जी पास होने देंगे। क्यों हम ऐसा होने दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ना, सॉफ्टवेयर में जो डेटा है वो कह रहा है कि इन एनर्जी में डालोगे तभी आपको ये यहाँ पे पता चलेगा। मान लो आपने 5000 एंगस्ट्रॉम डाल दिया, वहां तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई नहीं। 5000 और 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमने डाल दिया तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो आपको ब्लैंक दिखेगा, मतलब कोई एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो यहाँ पे राइट आपको डिसकंटिन्यूअस या फिर ये लाइन एब्सेंट नहीं दिखेगी। तो ये सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन कि कौन सी वाली वेवलेंथ का फिल्टर लगाएं यहाँ पे, कौन सी वाली वेवलेंथ यहाँ पे जाएंगी, रेंज ऑफ वेवलेंथ जो कि पास होंगी गैसेस सैंपल में। फिर वहां पे अगर आयरन होगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे हमें दिख जाएगा स्पेक्ट्रोग्राफ में कि कौन कौन सी एनर्जी के फोटोन हमारे एब्सेंट हुए। अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर सकते हैं, पहले आयरन के लिए कर सकते हैं, फिर कैल्शियम के लिए कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए हो सकता है वेवलेंथ अलग अलग हो, वहां पे वेवलेंथ 200 और 300 एंगस्ट्रॉम हो काइंड ऑफ। सो दिस इज मिस और मैच, इससे क्या होता है, आसान रहता है, दिक्कत नहीं आती है। ये सारी बातें हैं, आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही है, इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकती है। समझ में आया? तो then say yes, and this time I want more people will say yes. वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यूज है यहाँ पे, लेकिन हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने बस पहले बता दिया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसका ही उल्टा है इमिशन स्पेक्ट्रम। मैं क्विकली समझा रहा हूँ इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन में क्या होता है कि हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई, हमें मतलब ये है कि कौन सी लाइट इमिट हो रही है, मतलब कौन से फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है। इमिशन में क्या हमारे लिए जरूरी है, कौन से वाले फोटॉन्स निकले हैं ना, एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद तो हमें यहाँ पे नॉन वेवलेंथ के फोटोन नहीं डालने, राइट, हमें नहीं डालने। हमने क्या किया, ये गैस सैंपल था, फिर से इसको हीट करके कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी करके गर्म कर दिया एकदम, है ना, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, हीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, या फिर लाइट ही गिरा दी, कुछ डजंट मैटर। और जितने मान लो 10 सेकंड तक हमने लाइट गिरा, पहले हीट किया, है ना, जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ ये गैस में ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गैस में होता है ना, तो फिर आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है। बाकी अगर मान लो सॉलिड में होगा तो कुछ एनर्जी किस में चली जाएगी, है ना, उसको मेल्ट करने में चली जाएगी, सॉलिड से लिक्विड, तो आपको मतलब सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप एनर्जी के बेस पे ही तो बोल रहे हो, पता चला आपको लगा ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्ब होने की जगह मेल्ट करने में हो गई, राइट, या फिर कहीं और किसी और में चली गई। तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में ऑलरेडी सारे एटम्स ऑलरेडी एक्साइटेड, मतलब हाईएस्ट पे पहुंच गए, अब जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही होगा, ठीक है। तो ये केवल गैसेस के लिए होता है, गैसेस सैंपल लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक एसओपी है मेरा कि 10 सेकंड तक मैंने इसको हीट किया, तो 10 सेकंड तक जब तक हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक शटर टाइप लगा हुआ है ना, जैसे कैमरे में लगा होता है। तो जो लाइट अभी तक जा रही है उस पे ये प्रिज्म पे गिर नहीं रही है अभी। जैसे ये बंद हुआ, जैसे ही हमने बंद किया इसको, ये शटर खुल गया। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, ये सब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑलरेडी हायर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में है, हायर ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये हायर एक्साइटेड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन बस इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे बाय डिफरेंट पाथ। कोई डायरेक्ट आ सकता है, कोई ब्रेक करके आ सकता है, कोई थोड़ा ब्रेक करके आ सकता है, और उनके हिसाब से ये क्या करेंगे, फोटोन छोड़ेंगे। समझ में आया? तो जब ये फोटोन इस प्रिज्म पे गिरेगा तो हमें क्या होगी, बहुत सारी फोटोन लाइंस मिलेंगी, बहुत सारी लाइंस, लेकिन अलग अलग लाइन होंगी, कंटिन्यूस नहीं होंगी, है ना, बहुत सारी लाइन मिलेगी। तो ये क्या हो गया, आपका इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। यहाँ पे भी फायदा ये है, यहाँ पे भी हमारा सॉफ्टवेयर है, इससे हमें पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सी लाइन मैच हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया इमिशन। क्या करा हमने, पहले हमने 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, कुछ भी, एक एसओपी है हमारा, हमने कुछ हीट किया, एनर्जी दी ताकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए।
वो भी एनर्जी फिक्स एनर्जी है, ताकि ऐसा ना हो इमिट हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, बस केवल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, तब तक यहाँ शटर लगा हुआ है ना, ताकि ये वेवलेंथ ना पड़े, है ना। यहाँ से अभी जब हम दे रहे हैं एनर्जी तो राइट ये वेवलेंथ पड़ सकता है, राइट, तो शटर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने ये स्विच ऑफ किया, ये शटर ओपन हो गया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फोटोन छोड़ेंगे, इन फोटोन को पढ़ लिया। तो हम मेनली पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये बात हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम समझ लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम का मैंने मतलब आउटलाइन बता दिया है क्या है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एसओपी, मतलब जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो वहां पे वो पहले से फिक्स करके रखते हैं कितने सेकंड तक देंगे ना, कितनी एनर्जी का देंगे, राइट। अलग अलग सैंपल के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज होती है। मतलब कोई आयरन इंडस्ट्री वाला है, माइनिंग वाला है, तो वो अपने हिसाब से रखेगा। मान लो कोई एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में है तो वो रखेगा। कोई जियोलॉजिस्ट है, नॉर्मली देख रहा है कि कौन सी मेटल कहाँ पे है, उसका अलग होगा, सबका अलग अलग है। हेलो सर। हाँ सर अगर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एमिट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से जो लाइट आ रहा था वो क्यों था? मैंने बोला था कि कुछ भी कहीं से भी एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। लाइट से भी एनर्जी दे सकते हैं। अच्छा, तो या तो लाइट यहाँ नोन एनर्जी की वेवलेंथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, समझते हैं टिप्स आपके एग्जाम के लिए क्विकली, 5-10 मिनट ही है। तो पहली बात यह है कि आप एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लो। जैसे मेरे हिसाब से यू कैन फिक्स द टाइम इंटरवल लाइक मैथ्स शुड बी लाइक 60 मिनट्स, सो यू शुड नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री, do not cross this boundary, right? You can say physics is, let's say, around, I will give also like 50 minutes, right? This is including bubbling and everything, so you should not cross this boundary. And for chemistry you can say this is 40 or 45 minutes depending on ki question ki length kaisi hai, and then you should not cross this boundary. So remaining, let's say remaining 10 or 15, यहाँ पे जो भी 20 minutes मिल रहे हैं mainly, you can let's say increase to 55 मिनट, जो भी मिल रहे हैं आपको 15 मिनट, ये दिस इज ओनली फॉर रिव्यू पर्पस। कभी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए, मान लो एक टॉपिक पे, मान लो आपको लग रहा है कि आपने मैथ्स जल्दी जल्दी किया था, राइट, तो ये आप लास्ट के 15 मिनट में उसको रिव्यू कर लोगे और वो कर लोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता यह है कि ऑन एन एवरेज जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, अगर मान लो वो मैथ्स में 60 मिनट की जगह, मतलब ये एक बाउंड्री है, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना है। 61 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना, मतलब आप एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गोइंग हो तो चलेगा। होता यह है कि कई बार जैसे मैथ्स में आपने 60 की जगह 70 मिनट्स यूज कर लिए, तो इट पुट्स ए एक्स्ट्रा प्रेशर टू अदर 2 सब्जेक्ट टू फिनिश अर्ली, है ना। आपको मान लो यहाँ 70 मिनट है, चलो आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, आपने फिजिक्स भी किया और फिजिक्स में भी आपने जैसे 70 मिनट दे दिए। नाउ यू आर हैविंग एक्स्ट्रा प्रेशर टू फिनिश केमिस्ट्री इन 40 मिनट, और एल्स आपका पेपर छूट जाएगा। अब आप जल्दी में क्वेश्चन करोगे तो यू विल मेक मोर मिस्टेक देन यूजुअली यू हैव डन, ठीक है। बबलिंग आप बबलिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जब आप प्रेशर में काम करोगे, प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी मिस्टेक ज्यादा होगी। तो आप पहले तो टाइम मैनेज करो। आपके पास ये हमेशा 15 मिनट की विंडो है, आपके दिमाग में ये होगा कि अच्छा ठीक है, मेरे से मैथ्स नहीं हो पाया, मैं इधर देख लूंगा, या मुझसे फिजिक्स पूरा नहीं हो पाया, मैं इधर देख लूंगा, या मेरे से दोनों नहीं हो पाए तो मैं देखूंगा मैथ्स का पेपर आसान था या फिजिक्स का पेपर ज्यादा आसान था, तो मैं उसको देख लूंगा यहाँ पे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली अगर हम नॉर्मली देखेंगे 50 और 60 जो भी ये टाइम है, ये सफिशिएंट टाइम होता है सारे इजी क्वेश्चन और इजी और मीडियम क्वेश्चन क्रैक करने का। इतने टाइम में इजी और मीडियम आपके बन जाएंगे। जो नहीं बने होंगे वो केवल टफ क्वेश्चन होंगे, जो या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपके लिए इस टाइम पे टफ है, हो सकता है ओवरऑल इजी हो लेकिन आपके लिए टफ हो, एंड दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब जो टफ क्वेश्चन है, जो आपसे नहीं बन रहा, फॉर्मूला नहीं आ रहा, आप उस पर सोच रहे हो, then it is going to take more time, it is not going to solve easily। हाँ बेटा 3 घंटे का टेस्ट है, राइट, 3 घंटे का टेस्ट होता है। ये सब मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता पेपर कैसा है क्या नहीं है, मैं बस तुम्हें क्विकली एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, राइट। वहां पे आपको पता होगा कि कैसा पेपर आ रहा है, मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं बनाया पेपर।
ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो भी पार्ट होगा वो हमेशा टफ होगा, जो आपसे नहीं बनेगा। तो आपने इजी और मीडियम पहले ही कर रखे हैं, राइट? सो यू आर नॉट वरीड अबाउट कि अच्छा ठीक है मेरे से, क्योंकि टफ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा टाइम लेने वाला था। बट इस स्ट्रेटजी से क्या होता है कि आप unnecessary you are not burdening yourself है ना, टू फिनिश अ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन लेस टाइम। क्योंकि जब भी आप जल्दी में काम करते हो तो गलतियां ज्यादा होंगी। ये आपको करना है, ये एक मन में बिठा लेना है कि ये पार्ट आपको मिस नहीं करना है, और आपके दिमाग में ये रहेगा, है ना। इसको 45 मिनट लिख लेते हैं, 60, 55, 45। मन में आपके ये रहेगा कि मेरे पास लास्ट 15 मिनट है, तो मैं कोई भी जो भी इन तीनों में से सबसे आसान लग रहा होगा, है ना, क्योंकि पूरा पेपर देख चुके होगे, तो मैं लास्ट 15 मिनट में देख लूंगा। ठीक है, ये आसान है, राइट? ये बात आप समझ सकते हो। अच्छा, दूसरा है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, कि आप एक पेज पढ़ो, राइट? एक पेज पढ़ो, तो उसके या तो आंसर, अगर जैसे ऑनलाइन हो रहा है तो आंसर या तो लिख लो, या फिर उसी टाइम पे एक पेज में जैसे मान लो 4 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4, और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये नहीं सॉल्व कर पाया, और ये सॉल्व कर लिया, इसका आंसर है बी सी डी। तो एक एक करके बबल मत करो, है ना। एक एक करके बबल करने में टाइम लगता है। पहले आप यहाँ से उस पे जाओगे, आंसर शीट पे जाओगे, तो उसमें जो भी 5 सेकंड 2 सेकंड जो भी लगे वो आपको बबल किया आपने। इससे बेटर है कि आपने 3 या 4 एक साथ आपने पहले सॉल्व कर लिए, आपको पता है बी सी डी आपको फिल करना है, फर्स्ट सेकंड का बीसी फिल करना है, थर्ड को छोड़ना है और फोर्थ को फिल करना है। तो आपको यू आर लेट्स से आई एम सेइंग कि आपने अगर मान लो 5 सेकंड भी यहाँ बचा लिए, तो पूरे पेपर में अगर मान लो 10 सॉरी 25 के हिसाब से 75, अगर 20 पेजेस भी हैं तो आपका कितना हुआ, 2 मिनट बच गए। 2 मिनट का मतलब ये है आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है। एंड दिस टेक्निक ओनली वर्क व्हेन यू नो मोर और यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, है ना। जो लोग खाली बैठे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो जाके एक एक सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास टाइम की कमी है उनके लिए है ये। कई लोगों को मैंने ये टिप्स दिए, वो कहते हैं हमें सर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि हमें आता ही नहीं था इतना, राइट। हाँ, बबलिंग में बच जाएगा, लेकिन पेज जाने में लगता है ना थोड़ा टाइम, देखने में, लुक करने में लगता है ना। एक का एक आप मैच कराओगे, एक का यही मैंने बी कराया है ना, बी ही फिल किया है ना, यू आर गोइंग टू बी इंश्योर दैट। तो उसमें मैंने वही बोला, मैंने कहा आपको एक एक 2 2 सेकंड भी लगेगा तो आपको पता नहीं लगेगा वो लग रहा है, लेकिन बढ़ जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ ऑनलाइन में तो सेम पेज पे ही होता है। हाँ, तो आप तो सॉरी, ऑनलाइन में तो फिर एक ही क्वेश्चन एक बार में आता है ना, राइट। मैं ये ऑफलाइन के लिए बोल रहा था, ये वाली टेक्निक। ऑनलाइन में तो एक क्वेश्चन एक ही बार में आता है, सो यू कैन मूव। बस ये कुछ टिप्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, और ऑल द बेस्ट। देखते हैं भाई, है ना। शुरुआत का टेस्ट, ओपनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा परफॉर्म करो, है ना। इट इज गोइंग टू मोटिवेट यू, गिव यू अ बूस्ट कि भाई मेरे को आ रही है चीजें, मैं अच्छा कर सकता हूँ। नहीं, और जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा वो परेशान ना हो, वो श्योरली वो इसलिए अच्छा नहीं गया है, उसका एक मेन रीजन ये है कि आपने गलतियां बहुत ज्यादा की हैं, स्लिप मिस्टेक ज्यादा की हैं, पढ़ाई नहीं की है ना। सो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्यों गलत आए, आपके मार्क्स नहीं आए। तो इट्स अ काइंड ऑफ ए रियलिटी चेक कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी पढ़ाई करने का तरीका सही है या नहीं। अच्छे नंबर आए सही है, अच्छे नंबर नहीं आए चेंज करना है, कुछ तो चेंज करना है। वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या चेंज करना है क्या नहीं। सी सब लोग अपने अपने पेपर को सॉल्व करना है ना। जब हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है दोबारा, राइट। अगर आपको टाइम मिलेगा तो दोबारा उसको सॉल्व करना है, एनालाइज करना है। वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।